جب ایک اللہ والے کو پھانسی پر لٹکایا گیا، اس اللہ والے نے آخر ایسا کون سا گناہ کیا کہ جس پر سر عام اس کو پھانسی پر لٹکایا گیا؟ چلتے ہیں ایک اور سبق آموز واقعے کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، پچھلے زمانے میں ایک اللہ والا رہتا تھا۔ اس وقت اس جیسا کوئی عبادت گزار نہیں تھا۔ اس نے ایک عبادت خانہ بنایا ہوا تھا اور وہ اسی میں اپنی عبادت میں مست رہتا تھا۔ اسے لوگوں سے کوئی غرض نہ تھی، نہ دنیا سے، نہ تو وہ کسی سے ملتا تھا اور نہ ہی کسی کے پاس آتا جاتا تھا۔ شیطان نے ایک بار اسے گمراہ کرنے کا ارادہ کیا۔ اللہ والا اپنے کمرے سے باہر نکلتا ہی نہیں تھا۔ وہ ایسا عبادت گزار تھا کہ اپنا وقت ہرگز ضائع نہیں کرتا تھا۔ شیطان نے دیکھا کہ جب دن میں کچھ وقت یہ تھکتا ہے تو کبھی کبھی اپنی کھڑکی سے باہر جھانک کر بھی دیکھتا ہے۔ ادھر کوئی آبادی نہیں تھی، اس کی عبادت گاہ بالکل ویرانے میں تھی اور اس کے ارد گرد کھیت اور باغ تھے۔ جب اس نے دیکھا کہ وہ دن میں 1 یا 2 مرتبہ کھڑکی سے دیکھتے ہیں تو اس مردود نے انسانی شکل میں آ کر اس کی کھڑکی کے سامنے عبادت کی نیت باندھ لی۔ عبادت کیا کرنی تھی، فقط شکل بنا کر کھڑا ہو گیا اور اسے گمراہ کرنے کے لیے دلکش بہروپ بناتا رہا۔ چنانچہ جب اس عبادت گزار نے کھڑکی میں سے باہر جھانکا تو ایک آدمی کو قیام کی حالت میں دیکھا۔ وہ بڑا حیران ہوا۔ جب دن کے دوسرے حصے میں اس نے دوبارہ کھڑکی سے باہر دیکھا تو پھر اسے کھڑے پایا، پھر تیسری مرتبہ پھر دیکھا۔ کئی دن اسی طرح ہوتا رہا۔ آہستہ آہستہ اللہ والے کے دل میں یہ بات آنے لگی کہ یہ تو کوئی بڑا ہی بزرگ انسان ہے جو دن رات اتنی عبادت کرتا ہے کہ وہ کئی مہینوں تک اسی طرح قیام کی حالت میں رہا۔ یہاں تک کہ اللہ والے کے دل میں یہ بات آنے لگی کہ میں اس سے پوچھوں تو صحیح کہ یہ کون ہے۔ جب اللہ والے کے دل میں یہ بات آئی تو شیطان نے کھڑکی کے قریب مصلی بچھانا شروع کر دیا۔ جب وہ کھڑکی کے قریب آ گیا اور اللہ والے نے باہر جھانکا تو اس نے شیطان سے پوچھا، تم کون ہو؟ وہ کہنے لگا، آپ کو مجھ سے کیا غرض ہے؟ میں اپنے کام میں لگا ہوں، مجھے تنگ مت کریں۔ وہ سوچنے لگا کہ عجیب بات ہے کہ یہ تو کسی کی بات سننا ہی گوارا نہیں کرتا۔ دوسرے دن اللہ والے نے پھر پوچھا، اپنا تعارف تو کروائیے۔ وہ کہنے لگا، مجھے اپنا کام کرنے دو۔ اللہ کی شان کے ایک دن بارش ہونے لگی۔ وہ بارش میں بھی نماز کی شکل بنا کر کھڑا ہو گیا۔ اللہ والے کے دل میں بات آئی کہ جب یہ اتنا عبادت گزار ہے کہ اس نے بارش کی پرواہ بھی نہیں کی تو کیوں نہ میں ہی اچھے اخلاق کا مظاہرہ کروں اور اسے کہوں کہ میاں اندر آ جاؤ۔ چنانچہ اس نے شیطان کو پیشکش کی کہ باہر بارش ہو رہی ہے، تم اندر آ جاؤ۔ وہ جواب میں کہنے لگا، ٹھیک ہے، مومن کو مومن کی دعوت قبول کر لینی چاہیے، لہٰذا میں آپ کی دعوت قبول کر لیتا ہوں۔ وہ تو چاہتا ہی یہی تھا۔ چنانچہ وہ کمرے میں آ کر عبادت کرنے لگا۔ وہ کئی مہینوں تک اس کے کمرے میں عبادت کی شکل میں بنا رہا۔ وہ دراصل عبادت نہیں کر رہا تھا، فقط عبادت کی شکل بنا رہا تھا، لیکن دوسرا یہی سمجھ رہا تھا کہ وہ عبادت میں مصروف ہے۔ اسے اس بات سے کیا غرض تھی، وہ تو اپنے مقصد پر قائم تھا۔ جب کئی مہینے گزر گئے تو اللہ والے نے اسے واقعی بہت بڑا بزرگ سمجھنا شروع کر دیا اور اس کے دل میں اس کی عقیدت پیدا ہونا شروع ہو گئی۔ اتنے عرصے کے بعد شیطان اللہ والے سے کہنے لگا، میرا سال پورا ہو چکا ہے، لہٰذا اب میں یہاں سے جاتا ہوں، میرا مقام کہیں اور ہے۔ روانہ ہوتے وقت ویسے ہی دل نرم ہو چکا ہوتا ہے، لہٰذا وہ اللہ والے سے کہنے لگا، اچھا میں آپ کو جاتے جاتے ایک ایسا تحفہ دے جاتا ہوں جو مجھے اپنے بڑوں سے ملا تھا۔ وہ تحفہ یہ ہے کہ اگر تمہارے پاس کوئی بیمار آ جائے تو اس پر یہ پڑھ کر دم کر دیا کرنا، وہ ٹھیک ہو جایا کرے گا۔ تم بھی کیا یاد کرو گے کہ کوئی آیا تھا اور تحفہ دے کر چلا گیا؟ اللہ والے نے کہا، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ کہنے لگا، ہمیں یہ نعمت طویل مدت کی محنت کے بعد ملی ہے، میں وہ نعمت تمہیں تحفے میں دے رہا ہوں اور تم انکار کر رہے ہو، تم بڑے نالائق انسان ہو۔ یہ سن کر اللہ والا کہنے لگا، اچھا جی، مجھے بھی پھر سکھا ہی دیں۔ چنانچہ شیطان نے اسے ایک دم سکھا دیا اور یہی کہتے ہوئے رخصت ہو گیا، اچھا پھر کبھی ملیں گے۔ محترم ناظرین، شیطان وہاں سے سیدھا بادشاہ کے گھر گیا۔ بادشاہ کے 3 بیٹے اور ایک بیٹی تھی۔ شیطان نے جا کر اس کی بیٹی پر اثر ڈالا اور وہ مجنونہ سی بن گئی تھی۔ وہ خوبصورت اور پڑھی لکھی تھی، لیکن شیطان کے اثر سے اس پر دورے پڑنے شروع ہو گئے۔ بادشاہ نے اس کے علاج کے لیے حکیم اور کئی طبیب بلوائے۔ کئی دنوں تک وہ اس کا علاج کرتے رہے، لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ جب کئی دنوں کے علاج کے بعد بھی کچھ فائدہ نہ ہوا تو شیطان نے بادشاہ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ بڑے حکیموں اور طبیبوں سے علاج تو کروا لیا ہے، اب کسی دم والے ہی سے دم کروا کر دیکھ لو۔ یہ خیال آتے ہی اس نے سوچا کہ ہاں، کسی دم والے بزرگ کو تلاش کرنا چاہیے۔ چنانچہ اس نے اپنے سرکاری نمائندے بھیجے تاکہ وہ پتہ کر کے آئیں کہ اس وقت سب سے زیادہ نیک انسان کون ہے۔ سب نے کہا، اس وقت سب سے نیک آدمی تو وہ اللہ والا ہے۔
और वो तो किसी से मिलता ही नहीं। बादशाह ने कहा कि अगर वो किसी से नहीं मिलता तो उसके पास जाकर मेरी तरफ से दरख्वास्त करो कि हम आपके पास आ जाते हैं। कुछ आदमी अल्लाह वाले के पास गए। उसने उन्हें देखकर कहा, आप मुझे परेशान करने क्यों आए हैं? तो वो बोले कि बादशाह की बेटी बीमार है। हकीमों और तबीबों से बड़ा इलाज करवाया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बादशाह चाहते हैं कि आप बेशक यहाँ ना आएं ताकि आपकी इबादत में खलल ना आए। हम आपके पास लड़की को ले आते हैं, आप यहीं उस लड़की को दम कर देना। हमें उम्मीद है कि आपके दम करने से वो ठीक हो जाएगी। उसके दिल में ख्याल आया कि हाँ, मैंने दम सीखा तो था जिससे मैं किसी भी बीमार को अच्छा कर सकता हूँ। उस दम को आजमाने का ये बहुत अच्छा मौका है। चलो ये तो पता चल जाएगा कि वो दम ठीक भी है या नहीं। चुनाचे उसने उन लोगों को बादशाह की बेटी को लाने की इजाजत दे दी। बादशाह अपनी बेटी को अल्लाह वाले के पास लेकर आ गया। उसने जैसे ही दम किया तो वो फौरन सेहतमंद हो गई। मर्ज भी शैतान ने लगाया था और दम भी उसी ने बताया था, लिहाजा दम करते ही शैतान उसको छोड़कर चला गया और वो बिल्कुल ठीक हो गई। बादशाह को पक्का यकीन हो गया कि मेरी बेटी अल्लाह वाले के दम से ठीक हो गई है। 1-1.5 माह के बाद शैतान ने फिर उस लड़की पर हमला किया और वो फिर से अल्लाह वाले के पास आए। उसने दम किया तो शैतान ने फिर से उसे छोड़ दिया और फिर बादशाह को और यकीन हुआ कि मेरी बेटी का इलाज उस अल्लाह वाले के दम में है। अब तो उस अल्लाह वाले की बड़ी शोहरत हुई कि उसके दम से बादशाह की बेटी फौरन सेहतयाब हो जाती है। कुछ अरसे के बाद उस बादशाह के मुल्क पर किसी ने हमला किया। वो अपने शहजादों के हमरा दुश्मन का मुकाबला करने की तैयारी करने लगा। मोहतरम नाजरीन, अब बादशाह सोच में पड़ गया कि अगर मैं जंग में जाऊं तो बेटी को किसके पास छोड़कर जाऊं। मेरी बेटी की तो माँ भी जिंदा नहीं है और बाकी लोगों पर मैं भरोसा नहीं कर सकता। किसी ने मशवरा दिया कि वजीर के पास छोड़ जाएं, किसी ने कोई मशवरा दिया और किसी ने कोई। बादशाह कहने लगा, अगर इसको दोबारा फिर बीमारी लग गई तो फिर क्या बनेगा? फिर वो अल्लाह वाला तो किसी की बात नहीं सुनेगा। चुनाचे बादशाह ने कहा कि मैं खुद अल्लाह वाले के पास अपनी बेटी को छोड़े जाता हूँ। देखो शैतान कैसे जोड़ मिला रहा है। बादशाह अपने तीनों बेटों और बेटी को लेकर अल्लाह वाले के पास पहुँच गया और कहने लगा कि हम जंग पर जा रहे हैं, जिंदगी और मौत का कुछ पता नहीं। मुझे इस वक्त सबसे ज्यादा एतमाद तुम पर ही है और मेरी बेटी का इलाज भी तुम्हारे पास है, लिहाजा मैं ये चाहता हूँ कि ये बच्ची तुम्हारे पास ही ठहर जाए। मैं इसके रहने के लिए आपकी इबादत खाने के सामने एक घर बनवा देता हूँ और ये उसी घर में ठहरेगी। अल्लाह वाले ने ये सुनकर कहा, चलो ठीक है। जब उसने इजाजत दी तो बादशाह ने उसकी इबादत खाने के सामने घर बनवा दिया और अपनी बेटी को वहाँ छोड़कर जंग पर रवाना हो गया। अब अल्लाह वाले के दिल में बात आई कि मैं अपने लिए तो खाना बनाता हूँ, अगर उस लड़की का खाना भी मैं ही बना दिया करूँ तो इसमें क्या हर्ज है, क्योंकि वो अकेली है, पता नहीं कि अपने लिए खाना पकाएगी या नहीं। चुनाचा वो खाना बनाता, आधा खाना खुद खाकर बाकी आधा खाना अपने इबादत खाने के दरवाजे के बाहर रख देता और अपना दरवाजा खटखटा देता। ये उस लड़की के लिए इशारा होता कि अपना खाना उठा लो। इस तरह वो लड़की खाना उठा कर जाती और खा लेती। कई महीनों तक यही मामूल रहा। उसके बाद शैतान ने उसके दिल में ये बात डाली कि देखो वो लड़की अकेली रहती है, तुम खाना पकाकर अपने दरवाजे के बाहर रख देते हो और लड़की को वो खाना उठाने के लिए गली में निकलना पड़ता है। अगर गली में किसी मर्द ने देख लिया तो वो उसकी इज्जत खराब कर देगा और बादशाह की बेटी बेआबरू हो जाएगी। इसलिए बेहतर यह है कि खाना बनाकर उसके दरवाजे के अंदर रख दिया करो ताकि उसको बाहर निकलना ना पड़े। चुनाचे अल्लाह वाले ने खाना बनाकर उसके दरवाजे के अंदर रखना शुरू कर दिया। वो खाना रखकर कुंडी खटखटा देता और वो खाना उठा लेती। यही सिलसिला चलता रहा। जब कुछ और महीने भी गुजर गए तो शैतान ने उसके दिल में डाला कि तुम खुद तो इबादत में लगे रहते हो, ये लड़की अकेली है, ऐसा ना हो कि तन्हाई की वजह से और ज्यादा बीमार हो जाए। इसलिए बेहतर है कि इसको कुछ नसीहत कर दिया करो ताकि ये भी इबादत गुजार बन जाए और उसका वक्त जाया ना हो। ये ख्याल दिल में आते ही उसने कहा, हाँ ये तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन इस काम की तरतीब होनी चाहिए। शैतान ने उस बात का जवाब दिया, उसके दिल में ये डाला कि उसको कह दो कि वो अपने घर की छत पर आ जाया करे और तुम भी अपने घर की छत पर बैठ जाया करो और उसे वाज व नसीहत किया करो। चुनाचे उसने इसी तरतीब से वाज व नसीहत करना शुरू कर दी और उसके इस वाज व नसीहत के उस लड़की पर बड़ा असर हुआ। उसने इबादत और वजीफे शुरू कर दिए। अब शैतान ने उसके दिल में यह बात डाली कि देख तेरी नसीहत का इस पर कितना असर हुआ। ऐसी नसीहत तो हर रोज होनी चाहिए
चुनाचे उसने रोजाना नसीहत करनी शुरू कर दी। इस तरह करते करते जब कुछ वक्त गुजर गया तो शैतान ने फिर उसके दिल में ये बात डाली कि तुम अपने घर की छत पर बैठे रहते हो और वो अपने घर की छत पर बैठी रहती है। रास्ते में गुजरने वाले क्या बातें सोचेंगे कि ये कौन बातें कर रहे हैं। इस तरह तो बहुत ही गलत असर पैदा हो जाएगा। इसलिए अगर तकरीर करनी है तो चलो दरवाजे के अंदर खड़े होकर कर लिया करो, वो दूर खड़े होकर सुन लिया करेगी। चुनाचे अब उसने दरवाजे के अंदर खड़े होकर तकरीर करना शुरू कर दी। जब उसने अंदर खड़े होकर तकरीर करना शुरू की तो लड़की ने उसको बताया कि वो कितनी इबादत करती है। ये सुनकर उसे बड़ी खुशी हुई कि मेरी बातों का इस पर बड़ा असर हो रहा है। अब मैं अकेला ही इबादत नहीं करता बल्कि ये भी इबादत करती है। कई दिन तक यही सिलसिला चलता रहा। बिला आखिर शैतान ने लड़की के दिल में अल्लाह वाले की मोहब्बत डाल दी। चुनाचे उस लड़की ने अल्लाह वाले से कहा कि आप जो खड़े खड़े बयान करते हैं मैं आपके लिए 4 पाई डाल दिया करूँगी, आप उस पर बैठकर बयान कर दिया करना और मैं दूर बैठकर सुन लिया करूंगी। उसने कहा बहुत अच्छा। लड़की ने दरवाजे के करीब 4 पाई डाल दी। अल्लाह वाला 4 पाई पर बैठकर नसीहत करता और लड़की दूर बैठकर उसकी बात सुनती। इस दौरान शैतान ने अल्लाह वाले के दिल में लड़की के लिए बड़ी शफकत और हमदर्दी पैदा कर दी। कुछ दिन गुजरे तो शैतान ने उस आबिद के दिल में बात डाली कि नसीहत सुनानी तो लड़की को होती है, दूर बैठने की वजह से ऊंचा बोलना पड़ता है। गली से गुजरने वाले लोग भी सुनते हैं। कितना ही अच्छा हो कि ये 4 पाई जरा आगे करके रख लिया करें और पुस्त आवाज में गुफ्तगू कर लिया करें। 4 साल इसी तरह गुजरा तो शैतान ने लड़की को मुज़य्यन करके अल्लाह वाले के सामने पेश कर दिया और यूं वो उस लड़की के हुस्न जमाल का गर्विदा होता गया। अब शैतान ने अल्लाह वाले के दिल में जवानी के ख्यालात डालना शुरू कर दिए, हत्ता कि अल्लाह वाले का दिल इबादत खाने से उजाट हो गया और उसका ज्यादा वक्त लड़की से बातें करने में गुजर जाता। साल गुजर चुका था। एक दफा शहजादों ने खबर गिरी की तो शहजादी को खुशो खुरम पाया उस अल्लाह वाले के पास। बादशाह और शहजादों को लड़ाई के लिए दोबारा सफर पर जाना था, इसलिए वो मुतमईन होकर चले गए। अब शहजादों के जाने के बाद शैतान ने अपनी कोशिशें तेज कर दी। चुनाचे उसने अल्लाह वाले के दिल में लड़की का इश्क पैदा कर दिया और लड़की के दिल में अल्लाह वाले का इश्क भर दिया, हत्ता के दोनों तरफ बराबर की आग सुलग उठी थी। अब जिस वक्त अमनो नसीहत करता तो सारा वक्त उसकी निगाहें शहजादी के चेहरे पर जमी रहती। शैतान लड़की को नाजो अंदाज से कहता और वो सरापा नाज ने रश के कमर अपने अंदाजो व एतवार से अल्लाह वाले का दिल भी लुभाती, हत्ता कि आबिद ने अलहदा 4 पाई पर बैठने के बजाय लड़की के साथ ही एक 4 पाई पर बैठना शुरू कर दिया। अब उसकी निगाहें जब शहजादी के चेहरे पर पड़ी तो उसने उसे सरापा हुस्नो जमाल और जाजिब नजर पाया। चुनाचे आबिद अपनी शहवानी जज्बात पर काबू न रख सका और उसी शहजादी की तरफ हाथ बढ़ाया। शहजादी ने मुस्कुराकर उसकी हौसला अफजाई की, यहाँ तक कि अल्लाह वाले साहब ने लड़की से जिना कर दिया। जब दोनों के दरमियान से हया की दीवार हट गई और गुनाह के मुर्तकब हो गए तो वो आपस में मियाँ बीवी की तरह रहने लगे। इस दौरान शहजादी हामला हो गई। अब अल्लाह वाले को फिक्र लाहक हुई कि अगर किसी को पता चल गया तो क्या बनेगा, मगर शैतान ने उसके दिल में ख्याल डाला कि फिक्र की कोई बात नहीं। जब बच्चे की डिलीवरी होगी तो नामौलूद बच्चे को जिंदा दफन कर देना और लड़की को समझा देना, वो अपना भी ऐब छुपाएगी और तुम्हारा भी ऐब छुपाएगी। उस ख्याल के आते ही डर खौफ के तमाम हिजाब दूर हो गए और अल्लाह वाले बेखौफ व खतर अपनी हवस परस्ती में मसरूफ रहा। एक दिन वो भी आया जब उस शहजादी ने बच्चे को जन्म दिया। जब बच्चे को दूध पिलाने लगी तो शैतान ने अल्लाह वाले के दिल में डाला कि अब तो 1.5-2 साल गुजर गए और बादशाह और दीगर लोग जंग से वापस आने वाले हैं। शहजादी उनको सारा किस्सा सुनाएगी, इसलिए तुम इसका बेटा किसी न किसी बहाने से कत्ल कर दो ताकि गुनाह का सबूत बाकी ना रहे। चुनाचे एक दफा शहजादी सोई हुई थी तो उसने बच्चे को उठाया और कत्ल करके घर के सहन में दबा दिया। अब माँ तो माँ ही होती है। जब वो उठी तो उसने कहा मेरा बेटा कहाँ गया? उसने कहा मुझे कोई खबर नहीं। माँ ने इधर उधर देखा तो बेटे का कहीं सुराग ना मिला। चुनाचे वो उससे खफा होने लगी। वो खफा हुई तो शैतान ने अल्लाह वाले के दिल में बात डाली, देखो ये माँ है, ये अपने बच्चे को हरगिज नहीं भूलेगी। पहले तो ना मालूम कि ये बात बताए या ना बताए, लेकिन अब ये बादशाह और अपने भाइयों को जरूर बताएगी। लिहाजा एक ही इलाज बाकी है कि इस लड़की को भी कत्ल कर दो ताकि ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। जब बादशाह आकर पूछे तो बता देना कि वो बीमार हो गई और मर गई। जैसे ही उसके दिल में ये बात आई कहने लगा हाँ ये बिल्कुल ठीक है। चुनाचे उसने लड़की को भी कत्ल कर दिया और लड़के के साथ ही सहन में दफना दिया। उसके बाद वो अपनी इबादत में लग गया। कुछ महीनों के बाद बादशाह सलामत वापस आए। उसने अपने बेटों को भेजा कि जाओ अपनी बहन को ले आओ। अल्लाह वाले के पास आए और कहने लगे हमारी बहन आपके पास थी, हम उसे लेने के लिए आए हैं। अल्लाह वाले ने उनकी बात सुनकर झूठ मूठ रोने लगा और कहने लगा आपकी बहन बहुत अच्छी थी और बहुत नेक भी और बहुत इबादत गुजार थी, लेकिन वो अल्लाह को प्यारी हो गई।
ये सहन में उसकी कब्र है। भाइयों ने जब ये सुना तो वो रो धो कर वापस चले गए। घर जाकर जब वो रात को सोए तो शैतान ख्वाब में बड़े भाई के पास गया और उसे पूछने लगा, बताओ तुम्हारी बहन का क्या बना? वो कहने लगा, हम जंग के लिए गए हुए थे और उसे अल्लाह वाले के पास छोड़ गए थे, अब वो फौत हो चुकी है। शैतान कहने लगा, वो फौत नहीं हुई। उसने पूछा, अगर वो फौत नहीं हुई तो क्या हुआ? वो कहने लगा, उस अल्लाह वाले ने ये करतूत किया है और उसने खुद तुम्हारी बहन को कत्ल किया है और फिला जगह उसे दफन किया और बच्चे को भी उसी के साथ दफन कर दिया। उसके बाद वो ख्वाब में दरमियानी भाई के पास गया और उसको भी यही कहा और फिर उसके बाद वो छोटे भाई के पास गया और उससे भी यही कहा। तीनों भाई जब सुबह उठे तो एक ने कहा, मैंने ये ख्वाब देखा, दूसरे ने कहा मैंने भी यही, तीसरे ने कहा मैंने भी यही ख्वाब देखा। वो आपस में कहने लगे, ये सब इत्तेफाक है कि हम सबको एक जैसा ख्वाब आया है। छोटे भाई ने कहा, ये इत्तेफाक की बात नहीं बल्कि मैं तो जाकर तहकीक करूंगा। छोटा भाई गुस्से में आकर चल पड़ा। उसे देखकर बाकी भाई भी उसी के साथ हो लिए। उन्होंने जब जाकर जमीन खोदी तो उन्हें उसी में से बहन की हड्डियां भी मिल गईं और साथ ही छोटे से बच्चे की हड्डियों का ढांचा भी मिल गया। जब सबूत मिल गया तो उन्होंने अल्लाह वाले को गिरफ्तार कर लिया। उसे जब काजी के पास ले आए तो उस अल्लाह वाले ने काजी के रूबरू अपने उस घिनौने और मकरो फेल का इकरार किया और काजी ने अल्लाह वाले को फांसी देने का हुक्म दे दिया। जब अल्लाह वाले को फांसी के तख्ते पर लाया गया और उसके गले में फंदा डाला गया और फिर फंदा खींचने का वक्त आया तो फंदा खींचने से इन 2-4 लम्हे पहले शैतान उसके पास वही इबादत गुजार की शक्ल में आया और उससे कहने लगा, मुझे पहचानते हो कि मैं कौन हूँ? अल्लाह वाले ने कहा, हाँ मैं तुम्हें पहचानता हूँ, तुम वही इबादत गुजार हो जिसने मुझे वो दम बताया था। शैतान ने कहा, वो दम भी आपको मैंने बताया था, लड़की को भी मैंने अपना असर डालकर बीमार किया था, उसे कत्ल भी मैंने तुझसे करवाया था और अगर अब तू बचना चाहता है तो मैं ही तुझे बचा सकता हूँ। अल्लाह वाले ने कहा, अब तुम मुझे कैसे बचा सकते हो? ये कहने लगा, तुम मेरी एक बात मान लो, मैं तुम्हारा ये काम कर देता हूँ। उस अल्लाह वाले ने पूछा, मैं आपकी कौन सी बात मानूं? उस पर शैतान ने कहा, बस ये कह दो कि खुदा नहीं है। अल्लाह वाले के तो हवास बाख्ता हो चुके थे। उसने सोचा कि चलो मैं एक दफा कह देता हूँ, फिर फांसी से बचने के बाद दोबारा इकरार कर लूंगा। चुनाचे उसने कहा, खुदा मौजूद नहीं। एन उसी लम्हे में खींचने वाले ने फंदा खींच दिया और यूं उस इबादत गुजार की कुफर पर मौत आ गई। इसी से अंदाजा लगाएं कि शैतान किस तरह मंसूबा बंदी करके इंसान को गुनाह के करीब तर करता चला जाता है, जिससे इंसान बच नहीं सकता। अल्लाह ही उसे बचा सकता है। इसलिए कुरान में कहा गया है, ए अल्लाह हमें शैतान मरदूद के शिर से बचा। ए परवरदिगार मैं पनाह मांगता हूँ उसे कि शैतान मरदूद मेरे पास आए। ए अल्लाह पाक, जितने भी तमाम भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं उन सबको और मुझे अपनी खालिस इबादत करने की तौफीक अता फरमा और उन सब की तमाम परेशानियों को दूर फरमा। मोहतरम नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ पसंद आएगी। जज़ाकल्लाह।